ہیں؟ انہیں میرے نبی کا یار عبداللہ ذوالبجاتین کہتے ہیں۔ میں ساری بات تو نہیں کرتا، گھر میں آئے ہیں، گھر والوں کو پتا چلا، ہمیں پتا چلا تو بھی محمد کا غلام ہو گیا ہے، گھر والے سارے دوسرے تھے، ٹھیک ہے نا، محمد کا غلام ہو گیا ہے۔ اب یہ خاموش ہے، یہ نہیں بولے، ماں دیکھ رہی ہے، چاچا دیکھ رہے ہیں، باپ دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، ہمیں تیری حرکتوں سے پتا چلتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے نا، سر پہ ٹوپی رکھنا میرے نبی کی کیا ہے؟ کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا میرے نبی کی کیا ہے؟ یہ ان چیزوں سے تو بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ اس محمد کے تابعدار ہیں، یہ اس محمد کے کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ گا رہا ہے، کلمہ تو ابھی نہیں پڑھا، اندر سے مسلمان ہو گیا، اعلان ابھی نہیں کیا، دیکھا سب نے، ہمیں پتا چلا تو کہیں غلام تو نہیں ہو گیا۔ یہ اب خاموش ہے، بولے نہیں، گھر والے کہنے لگے ہمارا اعلان یہ ہے، یا تو توجہ یا محمد کو رکھ یا ہمیں رکھ، شرط لگا دی، مشروط کر دیا کہ اگر ادھر رہنا ہے تو محمد کو چھوڑ دے، توجہ، تو اگر اس کو نہیں چھوڑے گا تو پھر تمہیں ہم گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب حضرت کھڑے ہیں تو کہنے لگے جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کھڑے ہو کے اعلان کیا میں گھر پر تن من لٹا کر قربان کر کے لوگوں پہ وعدے کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ کو بہت پیارا نہیں، رشتے دار پیارے نہیں، خدا کا حکم پیارا ہے، عشق مصطفیٰ پیارا ہے۔ چاچا آیا کہنے لگا چل پھر ہمارے گھر سے نکل جا، اب اس طرح نکلے، توجہ ہے، اب پتہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس در پہ، اس طرح نکلے، پیچھے گھر والوں نے دیکھا، اب باقی تو سب باقی تھے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں دیکھی کہنے لگی بیٹا میرا یہ رول جائے گا، یہ رول جائے گا، اب گھر والے قبول نہیں کریں گے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ماں نے اچانک چوری چھپے کپڑا پھینکا، چادر پھینک دی، کیونکہ کپڑے بھی انہوں نے اتروا لیے تھے، کہنے لگے اگر محمد کو نہیں چھوڑو گے تو چمڑے بھی اٹھائے دیں گے۔ چادر لی اوپر لے کے چل پڑے، ننگے بدن پہ چادر اوڑھ لی، چل پڑے، اب آگے جا کے چادر پہ دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر کو ڈھانپ لیا، دوسری اوپر لے کے چل پڑے، تو آگے گئے، جا کے دیکھا میرا محبوب بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پوری نہ کی تو تقریر میں 3 بجے تک کروں گا۔ پھر آپ نے بار بار کہنا حضرت جی ٹائم ہو گیا جی بس کرو جی، سبحان اللہ تھوڑی یہ جا رہی کہ میں شادی بات ٹرین ہوں گی، سبحان اللہ تو پوری کیا تو یاد، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے الحمدللہ، آپ نے صرف سبحان اللہ کہہ لیجیے، یہی میری بچت ہے۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ آؤ نظر آگر تشبرات کی دنیا میں آپ اپنی آنکھوں کو بند کرو تو میں تمہیں دکھاؤں یہ کون بیٹھے ہیں۔ انہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ کون بیٹھے ہیں؟ انہیں عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ انہیں بدر الدجا کہتے ہیں۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ انہیں شمس الضحا کہتے ہیں۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ انہیں جانے دو عالم کہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے یاروں وفاداروں جان ساروں میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر کوئی فتویٰ نہ لگائے تو مجھے یوں لگتا ہے آسمان کا چاند اپنے ستاروں میں اتنا حسین نہیں لگتا جتنا حسین میرا نبی اپنے یاروں میں لگ رہا ہے۔ میرا محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے آقا بیٹھے ہیں، ایک طرف ابو بکر بیٹھے ہیں، دوسری طرف میرے نبی کے عمر بیٹھے ہیں، میرے نبی کے عثمان بیٹھے ہیں، میرے نبی کا علی بیٹھا ہے، میرے نبی کے طلحہ بیٹھے ہیں، میرے نبی کا زبیر بیٹھا ہے، میرے نبی کے جان سال رضوان
अलैहिम अजमाइन, सारे तशरीफ फरमा है, ये सारे हैं नबी के आशिक। ये सारे नबी के क्या है? सारे बोलो सारे। दावा तो हम भी बड़ा करते हैं, लेकिन आओ मैं तुम्हें जनाबे वाला, पंजाबी समझते हो? सारे समझते हो? चलो फिर एक और गल कर लेने आज। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूब कहा कि इधर बैठे हैं आमिना के लाल, सामने बैठे हैं नबी के यार, तो कहने वाले ने कह दिया कि बाग बहारा। काश के ये तकरीर मैं गुजरांवाला में कर रहा होता, तो फिर सुभान अल्लाह दी छल होनी सी, छल सुभान अल्लाह। बाग बहारा ते गुलजारा ते बिलियारा किसी कारी, सुभान अल्लाह। ते यार बिन दुख यार हजारा, ते मैं शुक्र करा लखवारी। यार बिन दुख यार हजारा, ते मैं शुक्र करा लखवारी। और नबी के यार भी मेरे नबी का चेहरा देख के कहते होंगे कि तू सोना, तेरा नाम सोना, पिया दिल की तारे हिलावे, ते आशिक दे लब जपिया पावन, ते जदों नाम जुबान ते आवे, आशिक दे लब जपिया पावन, ते जदों नाम जुबान ते आवे। मेरे आका बैठे हैं, अल्लाह की कसम मेरे महबूब अपने यारों में इतने हसीन नजर आ रहे हैं, चमकता हुआ चेहरा मेरे मुस्तफा का, जिस तरह सितारे सारे चमकते हैं, रोशनी चांद से लेते हैं, इसी तरह नबी के सारे यार हसीन हैं, ये रहमत कमली वाले से ले रहे हैं। मेरे नबी की जुल्फों की रंगाई इनके ऊपर गालिब है, मेरे नबी के मुखड़े की सफाई इनके ऊपर गालिब है, मेरे नबी की सीरत और मेरे नबी की इनकी अदा इनके दिलों में पैबस्त हो चुकी है। यही वजह है ना कि हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्फ़िकार जब घर वालों को छोड़ के मेरे नबी की महफिल में आए, तो मेरे नबी ने भी देख के कहा होगा, ये आने वाला आज मोहम्मद का गुलाम बन के आया है, घर वालों को छोड़ के आया है, रिश्तेदारों को छोड़ के आया है। मैं मोहम्मद हर उस बंदे के साथ मैं अपने ताल्लुक का इजहार करता हूँ जिसको चाहने वाला कोई ना हो। अब आइए जरा महफिल का नजारा कर लीजिए। सारे नबी के यार सच्चे, नबी के सारे यार क्या हैं? सच्चे। बोलो नबी के सारे यार क्या हैं? सच्चे। नबी के यार सच्चे भी हैं, ईमान वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। सच्चे हैं तब जब दिल में ईमान है। लेकिन एक जुमला देता हूँ, दाएं बाएं सारे बैठे हैं, तो दरमियान में ना, दरमियान में करके एक काले रंग का बैठा है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये सारे बैठे। मैंने कहा या अल्लाह तेरे नबी की महफिल हो, नबी जैसा हसीन को दुनिया पे आया है? नहीं। बोलो ना। नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आपने सुना होगा। जो लड़कियां उसके बारे में बातें करती थी, वो भी कोई आम लड़कियां नहीं थी, वो भी शहजादियां थी, वजीरों की बेटियां थी। घरों में बातें शुरू हो गई। जुलेखा कहने लगी कि इन्होंने ना मुझे बदनाम कर दिया, अब मैं इनका इलाज करती हूँ। दावत रखी, फल रखे, हाथों में छुरियां दे दी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि जब ना मैं आपको आवाज दूं ना, चले वो बात तो आपने मेरी नहीं मानी, ये तो मान ले, सिर्फ आ जाए, सिर्फ आ जाए। वो तो मुझे पता है कि तूने मेरी तरफ देखना नहीं है, मेरी तरफ तूने देखना नहीं है। क्यों?
हसीन तो मैं भी बड़ी हूँ पर तेरी आंख में हया बड़ा है। सुभान अल्लाह। तेरी आंख में हया बहुत। हया क्यों ना हो, नबी जो हुआ। सुभान अल्लाह। भाई यहाँ तो नबी के गुलाम की आंख में इतना हया होता है कि आसमान से फरिश्ता आके कहे आका जी जब उस्मान आ जाए तो आप भी हया किया करें। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में आता है ना कि पिंडली से कपड़ा ऊपर नीचे था तो ऊपर कर लिया। साहबा ने पूछा, गालिबन कहते हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन ने पूछा होगा कि यार रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर आया तो कपड़ा नीचे रहा है, उमर आया तो आपने ऊपर नहीं किया, तो उस्मान आए। हुजूर फरमाते हैं जिससे फरिश्ते हया करे मैं मोहम्मद क्यों ना करूं। सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद उसका हया क्यों ना करूं। मैंने कहा या अल्लाह, बिलाल सारे यार बैठे हैं, दरमियान में एक काले रंग का बिलाल बैठा है। अल्लाह फरमाते हैं तुझे परेशानी वाली क्या बात है। मैंने नबी के खूबसूरत महफिल के अंदर काले रंग के बिलाल को बिठा कर नबी की महफिल को ऐसे ही हुस्न अता कर दिया है जैसे जन्नत की हूर के चेहरे पे काला तिल लगा के हुस्न दे दिया है। अब मानो कि नबी के सारे यार सच्चे। सुभान अल्लाह। नबी के सारे यार क्या हैं? सच्चे। बोलो बोलो, नबी के सारे यार सच्चे। हजरत बिलाल की क्या बात करते हो? बिलाल है गुलाम, लाचार है बेचारा। उमैया ने मार मार के जुल्म कर करके चमड़ी उधेड़ दी, गरम रेत, सीने पे वजनी पत्थर, हाथ पे कोड़ा मारता है, जो भी आता है बिलाल पे तशद्दुद करता है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं बिलाल की अजमत पे। लोगों ने नबी के नाम पे, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, लोगों की, आम लोगों की, लोगों ने नबी के नाम पे माल खाया, बिलाल ने नबी के नाम पे मार खाई। नबी के नाम पे क्या किया? मार खाई। कहते हैं कि एक दिन उमैया ने इसी तरह लिटाया हुआ था, मार रहा था, हजरत अबू बकर आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक आए, सिद्दीक आए, इस तरह हजरत बिलाल की तरफ देखा, देख के कहने लगे बिलाल जी क्या बात है, ये तुझे क्यों मारते हैं? हजरत बिलाल कहते हैं अबू बकर मेरा जुर्म कोई तुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरा जुर्म कोई तुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है तू मक्के का ताजर हुआ, तू मक्के का ताजर है, चौधरी है, बड़े खानदान से तेरा ताल्लुक है, तू एक अजीम इंसान और अजीम आदमी है, तेरे साथ डरता तू बंदा बात नहीं करता, तू मालदार है, बड़ा तेरा रोब है, दबदबा है, मैं हूँ गरीब लाचार हबशी परदेसी लावारिस, जो कर कोई मेरे लिए कौन? बिलाल मारते क्यों है? फरमाया मारते हैं गुलाम जो हूँ। जुमला मैंने ये जुमला एक जगह पे दिया था तो कुछ उलमा ने फतवे के रजिस्टर खोल लिए थे, लेकिन ये तो मेरे सारे भाई हैं, ये कोई फतवा इंशाल्लाह नहीं लगाएंगे, मेरी इस्लाह करेंगे, मैं क्योंकि अपने तसव्वुर में बात चाहता हूँ, ठीक है ना। कहीं बाद में ये पूछेंगे कुरान की कौन सी आयत है और कौन सी सियासिता की किस किताब की हदीस है जो आपने बयान की, ठीक है ना। तवज्जो। हजरत अबू बकर आए, आके कहने लगे बिलाल मारते हैं जी मारते हैं। अच्छा मेरा एक मशवरा है, इनकी मार से अगर बचना है ना तो कलमा छुपा ले। क्या कर? कलमा छुपाने का मतलब पता क्या है? यानी कि पढ़ना छोड़ दे, इनके सामने ना पढ़ा कर, मार से बच जाएगा। हजरत सिद्दीक ने कहा ठीक है आपका मशवरा मिल गया। अबू बकर वापस अगले दिन फिर आए, बिलाल फिर तड़प रहे हैं, फिर मार खा रहे हैं। सिद्दीक आए, आगे कहने लगे बिलाल मैंने तुझे कल भी रोका था, तू आज फिर मार खा रहा है। जुमला देता हूँ जरा तवज्जो करना, चलो जुमला दे देता हूँ लेकिन एक बात सुभान अल्लाह कह दो। मुझे ऐसे लगता है अबू बकर, हजरत बिलाल ने अबू बकर के चेहरे की तरफ देखा, देख के कहा होगा अबू बकर मुझे एक बात तो बता, कभी चढ़ते हुए चांद की चांदनी भी छुपी है? कभी सूरज की तबानी छुपी है? फूल कभी अपनी खुशबू को छुपा सका है? नहीं नहीं, फरमाया अगर चांदनी को नहीं छुपा सका, चांदनी नहीं छुपा सकता, फूल खुशबू को नहीं छुपा सकता, तो बिलाल इसके मुस्तफा को कैसे छुपा सकता है?
मुंह से आवाज आई आहदुन आहदुन आहदुन। हजरत अबू बकर ने कहा बिलाल मैंने तुझे देख लिया है, तू मार खा खा के नबी के इश्क में इतना पक्का हो चुका है, अब तुझे मार मार नहीं लगती, मार भी ईमान का हिस्सा नजर आती है। ऐ बिलाल तुझे मार मार के इन्होंने तुझे इतना पक्का कर दिया है, अब मैं करूंगा तेरा सौदा। हजरत अबू बकर चलते चलते सीधे उमैया बिन खलफ के पास गए, जाके कहने लगे ओए उमैया तुझे शर्म नहीं आती, बड़ा चौधरी बना बैठा है, बड़ा ताजर बना बैठा है, बड़ा बदमाश बना बैठा है, तू एक गुलाम लाचार पे इतना रोब डालता है, उस बेचारे को मारता है। तो उमैया कहने लगा ऐ अबू बकर तू बड़ा बिलाल की तरफदारी कर रहा है, अगर तुझे बिलाल पे इतना तरस आता है तो तू ले ले, क्या कर मुझसे खरीद ले खरीद ले। तो हजरत अबू बकर मेरा जुमला कहा होगा, हजरत सिद्दीक ने कहा होगा मैं भी यही चाहता था, तू बात तो करना, कहीं ये ना हो कि मैं बिलाल का सौदा करूं तो तू मुकर जाए, तू बात तो कर। अब मुख्तसर कहने लगा इतने पैसे लूंगा, ये पकड़ पैसे, वो तेरे पास एक तगड़ा गुलाम है वो भी लूंगा, वो भी दे दिया। हजरत अबू बकर ने बिलाल को बाजू से पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। जो जो मस्जिदों में अजाने पढ़ते हैं ना उनको तो बिलाल के नाम पे बोलना चाहिए ना, सुभान अल्लाह, क्योंकि ये मुअज्जिन रसूल है, ये मुअज्जिन रसूल है। बिलाल की अजमत मौजू होता, इधर चल पड़ता, इशारा देता हूँ। हजरत बिलाल को बाजू से पकड़ा अबू बकर ने, लेके चल पड़े। मुझे ऐसे लगता है हजरत सिद्दीक ने इस तरह बिलाल के चेहरे को देखा, देख के बिलाल को कहा अब आंसू साफ कर ले, अब आंसू साफ कर ले, अब बिलाल रो ना, इनको क्या पता हो तू कौन है, तेरी अजमत को या खानकाहे मुस्तफा जाने या बैतुल्लाह की छत जाने। तो हजरत सिद्दीक ने बिलाल को पकड़ा, लेके चल पड़े। तो उमैया ने पीछे से आवाज दी, आवाज दे के कहता है अबू बकर मैंने तो सुना था तू मक्के का बड़ा ताजर है, तूने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, तूने कभी लाश का सौदा नहीं किया, आज मुझसे तुझे दाल लग गया है। मैंने मार मार के बिलाल को किसी काम का नहीं छोड़ा, किसी काम का नहीं छोड़ा, मैंने तुझसे गुलाम भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, ले जा बिलाल फर्ज है। अबू बकर ने कहा होगा और तुझे क्या पता हो मैं तुझसे कौन सा हीरा खरीद के ले जा रहा हूं, तुझे क्या पता हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन गुलामों की बात आई, दीवानों की बात आई, अबू बकर भी मेरे नबी का आशिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस तकरीर मेरी आखिरी जुमले हैं इंशाअल्लाह, जो कुरान की आयत पढ़ी है ना उसमें एक दलील पेश करके इजाजत देने लगा हूं, लेकिन मेरी ये हसरत ही रह जानी है कि आप सारे सुभान अल्लाह कहो। फ्रंट सीट से लेके वो आखिर तक, अब तो मजमा बहुत हो गया मस्जिद में माशाअल्लाह, वो एंड तक जितने हजरात बैठे हैं ना सारे एक बार सवाब की नियत से दोनों हाथों को बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह।